अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़ सर। Okay, students, today our topic is hyperbola. Sorry, today I'm late because there was no light, there was no internet, nothing was there since last night. Hyperbola. Ali Muhammad. So hyperbola is a curve whose equation is the standard equation x square upon a square minus y square upon b square equal to 1. This is the standard equation of the hyperbola. Mohammed Shoaib. And that is
Anyone may convey the message to Muhammad Mubin. He must write his ID. Muhammad Mubin, he must write his ID. Anyone may convey the message. He is not writing the ID. This is the everyday problem with him. Okay, so this is the standard equation of hyperbola. X square upon a square minus y square upon b square, or x minus, or we may write in this way. X minus h whole square upon a square minus y minus k whole square upon b square is equal to 1. This is the equation of a hyperbola, the standard equation of the hyperbola. So the shape of the hyperbola is just like that. In this exercise, x-axis, y-axis, origin, this is the shape of hyperbola. There are two curves. In the hyperbola, there are two curves, two symmetrical curves, opposite to each other. So this is the shape of the hyperbola. So this is the line. There are two symmetrical lines, just like in the ellipse. In the ellipse also there were two symmetrical lines. One is this one. On this line, on this side of this line, or on this side of this line. Both figures are symmetrical, which are called the mirror image. If you put the mirror over there, you will get the same thing on the other side. This is called the mirror image. And one line is this one. If you put the image vertically, you will get the same thing on the other side. So there are two lines of symmetry. There are two lines of symmetry in the hyperbola. In the ellipse also there are two lines of symmetry. In the circle there are a number of lines of symmetry. There are a number of lines of symmetry. And in ellipse there are two lines of symmetry. In the hyperbola also there are two lines of symmetry. One is this one, or up on this side of the line, and on this side of the line the same things are there. The same images are there. The same figures are there. And in the same way, to put the mirror on the vertical line, the same thing is on the opposite side. So there are two lines of symmetry in the hyperbola and in the ellipse. The line of symmetry which is intersecting the hyperbola, these are the two curves. This is the line of symmetry which is intersecting the hyperbola at 2 points, at this point and at this point. So this is called the transverse axis. उसमें हम मेजर एक्सिस कहते थे, उसमें हम क्या कहते थे? मेजर एक्सिस ये है ट्रांसवर्स एक्सिस. आदिल अली 10931. तो ये क्या कहलाता है? The line of symmetry which is passing, which is intersecting the hyperbola is called the transverse axis. तो ये transverse axis है.
and the point where the transverse axis intersecting the hyperbola are called vertices. उसमें मेजर एक्सिस जो है वो इलिप्स से मेजर एक्सिस इंटरसेक्ट करता था इसको सर्कल को एलिप्स को, तो वो पॉइंट्स क्या कहलाते थे? वर्टिसेस। तो यहाँ भी ये वर्टिसेस है, एक ये वर्टेक्स होगा और एक ये वर्टेक्स होगा। दिस इज वी डैश, वन इज वी डैश। Ghazal Mustafa again came. Abdullah. ट्रांसवर्स एक्सिस जस्ट लाइक द मेजर एक्सिस, उसमें मेजर एक्सिस कहलाता था, ये ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाता है। सो ट्रांसवर्स एक्सिस इंटरसेक्टिंग द हाइपरबोला एट द 2 पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड वर्टिसेस, ये वर्टिसेस कहलाते हैं। और इन वर्टिसेस का मिड पॉइंट जो है वो सेंटर कहलाता है। द मिड पॉइंट ऑफ द वर्टिसेस इज कॉल्ड द सेंटर और द मिड पॉइंट। दोनों वर्टिसेस के दरमियान बिल्कुल मिड में जो पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड द वर्टिसेस, दिस इज कॉल्ड द सेंटर और द मिड पॉइंट। तो ये हमारा सेंटर है। फ्रॉम सेंटर टू द वर्टेक्स द डिस्टेंस विल बी ए, फ्रॉम सेंटर टू द वर्टेक्स द डिस्टेंस विल बी ए, ये भी ए होगा डिस्टेंस और ये भी उतना ही डिस्टेंस होगा, दोनों तरफ सेम होगा। ए इज द डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू द सेंटर, the distance from vertex to the center will be a, and on the transverse axis there will be the 2 points inside this one, this is called the focus, on side there also f dash. So these are called the 2 foci, just like in the ellipse also has the 2 foci, and the distance from the center to the focus will be c। यहां से यहां तक का डिस्टेंस c है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है, वर्टेक्स तक का, सेंटर टू द वर्टेक्स इज a एंड सेंटर टू द फोकस विल बी c। ये डिस्टेंस c है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, फ्रॉम हियर अप टू हियर, दिस इज द डिस्टेंस c। इधर तक का भी और इधर तक का भी, ये भी c है डिस्टेंस, ये नेगेटिव होगा इस तरफ पॉजिटिव होगा, ये a पॉजिटिव होगा, इस तरफ नेगेटिव होगा a, and the distance will be the same. From center to the vertex will be a, and from center to the focus will be c. Fahad bin Arshad. So ये याद रखें, ये टर्मिनोलॉजी है इसकी। From center to the vertex will be the distance a, from center to the focus will be the distance c. And what is b? और a क्या है? This is called the semi transverse axis, vertex से vertex तक का distance, this is called the transverse axis. The distance from one vertex to the other vertex will be called the transverse axis. So transverse axis is 2a, and a is the semi-transverse axis. A is the semi-transverse axis. In the same way, the distance from center to the focus will be c.
and the distance from one focus to the other focus will be 2c. And what is B? This A I told you, H and K are the coordinates of the center. H and K, these are the coordinates of the center. H is the coordinate of X coordinate, K is the Y coordinate. So H and K are the coordinate of the center. A is the distance from center to the vertex, and 2A is called the transverse axis. A is half of the transverse axis, semi-transverse axis. A is the semi-transverse axis, and transverse axis, this is from vertex to the vertex distance. This is called the 2A. Transverse axis will be 2A. In the same way, from center to the focus, the distance is C. Center to the focus, the distance is C. And what is B? 2B is called the conjugate axis. That will be vertical to this one. Just like in the minor axis was in the ellipse, minor axis always be vertical to the major axis. In the same way, conjugate axis will be vertical to the transverse axis. And this is passing through the center. In the same way, just like in the minor axis was passing through the center and it was vertical to the major axis. Here also the conjugate axis is passing through the center and vertical to the transverse axis. तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस b कहलाएगा. This is b. और यहां भी होगा b. So b is the distance from center to the end point of the conjugate axis. So here the conjugate, this is the transverse axis. Will be 2a. A क्या है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस. Conjugate axis, to be. Conjugate axis is perpendicular to the transverse axis and always be passing through the center. जैसे उसमें minor axis was passing through the center in the ellipse and perpendicular to the major axis. इसमें क्या होगा? Conjugate axis और transverse axis. उसमें major axis minor axis था, इसमें transverse axis और conjugate axis है. And what is the relation between C and AB? उसमें हमने पढ़ा था a square is equal to c square is equal to a square minus b square. इसमें क्या होगा? c square is equal to a square plus b square. This is the relation between a, b and c. This is the relation between a, b and c. अच्छा, अब ये हमें दूसरी बात इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है इलिप्स में और इसमें? उसमें दोनों पॉजिटिव थे, एक्स स्क्वायर वाला भी और वाई स्क्वायर वाला भी पॉजिटिव थे, दोनों बीच में पॉजिटिव निशान आ रहा था. और ए और बी आर ऑलवेज डिफरेंट. इन द इलिप्स there is positive sign in between x square and y square. Both are positive. X square and y square both are positive. And a and b are not equal. A and b are not equal in ellipse. इसमें क्या होगा? There is a negative sign between x square and y square. So any one of them may be negative. Either x square will be negative or y square is or negative. Either x square is negative or y square is negative. कोई एक इनमें से negative होगा, एक positive होगा. X square and y square both have opposite signs in hyperbola. Number one. Number two, a and b may be equal or may not be equal. इलिप्स में लाजमी था कि दोनों अनइक्वल हों.
otherwise that will be the circle, not the ellipse. If A and B are equal, this will not be a ellipse, that will be a circle. लेकिन हाइपरबोला में ऐसा नहीं है, A और B इक्वल भी हो सकते हैं, A और B अनइक्वल भी हो सकते हैं। तो याद रखना है A और B इसमें इक्वल भी हो सकते हैं और A और B अनइक्वल भी हो सकते हैं। अच्छा, उसमें हम देखते थे कि मेजर एक्सेस अलोंग किसके होगा, जो बड़ा होगा। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे नंबर बड़ा है तो मेजर एक्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, अगर वाई स्क्वायर के नीचे नंबर बड़ा है तो मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। इसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव होगा, अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग एक्स एक्सिस है। और अगर वाई स्क्वायर नेगेटिव है, वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। तो जो पॉजिटिव होगा उसके वो होगा ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग दैट एक्सिस होगा, और उसी के नीचे जो नंबर होगा वो ए कहलाएगा, हाँ वो छोटा हो इससे या बड़ा हो। जो पॉजिटिव एक्सिस के नीचे नंबर होगा वही ट्रांसवर्स एक्सिस, वही ए कहलाएगा, और दूसरा नंबर जो नेगेटिव वाले के नीचे होगा वो बी कहलाएगा। उसमें कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा, हम छोटे बड़ा नहीं देखना, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। छोटा बड़ा हमने नहीं देखना, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव हमने देखना है। अब्दुल्ला शाह, तो ये इसमें चंद चीजें थी जो उससे डिफरेंट थी, और फिगर जो है बिल्कुल ही अपोजिट है उससे, फिगर बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये तो उसकी फिगर्स और उसकी टर्मिनोलॉजी हो गया। ए क्या है, दिस इज द सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। बी क्या है, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। बी क्या है, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस आर orthogonal. Orthogonal means they are perpendicular to each other. Number two, they are passing through the center. उसमें भी ऐसे ही था। उसमें भी ऐसे ही था। और इसमें भी ऐसा ही है कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस उसमें वर्टिकल थे, ऑर्थोगोनल थे, और दे आर पासिंग थ्रू द सेंटर। इसमें भी ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस आर ऑर्थोगोनल and passing through the center. Orthogonal means they are perpendicular and passing through the center. उसमें माइनर एक्सिस छोटा होता था, मेजर एक्सिस बड़ा होता था। इसमें ऐसा नहीं है, ट्रांसवर्स एक्सिस भी छोटा हो सकता है और कॉन्जुगेट एक्सिस भी छोटा हो सकता है, और दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। इसमें इक्वल भी हो सकते हैं और नॉन इक्वल भी हो सकते हैं। उसमें नॉन इक्वल ही हो सकते हैं, इक्वल नहीं हो सकते इलिप्स में। दूसरी चीज, ये एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में से कोई एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, नीदर बोथ नेगेटिव नॉर बोथ पॉजिटिव। और उसमें सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर में क्या रिलेशन था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिलेशन है इसमें। और जो पॉजिटिव एक्सिस के नीचे होगा वो ए कहलाएगा, ए स्क्वायर कहलाएगा, जो नेगेटिव के नीचे होगा वो बी स्क्वायर कहलाएगा, खा वो छोटा हो या बड़ा हो। और जो पॉजिटिव एक्सिस होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस विल बी अलोंग दैट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस विल बी अलोंग दैट एक्सिस। यहाँ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। अगर ये नेगेटिव होता, अगर यूं होता हमारे पास y माइनस के होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो याद रखिए पॉजिटिव के नीचे ए स्क्वायर होगा। अगर एक्स पॉजिटिव है तो उसके नीचे वाले नंबर को हम ए स्क्वायर कंसीडर करेंगे। अगर वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो उसके नीचे वाले नंबर को हम ए स्क्वायर कंसीडर करेंगे और इक्वल टू 1।
और इसकी अगर शेप बनाए तो इसकी शेप यूं बनेगी। ये सेंटर हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स वी डैश हो गया, ये एफ हो गया और ये एफ डैश हो गया। इसकी शेप ये बनेगी। इस सूरत में जब वाई स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो इसकी शेप यूं बनेगी। वाई एक्सिस पर ये एलिप्स बनेगा हाइपरबोला, और इसमें एक्स एक्सिस पर बन रहा है, ये वाई एक्सिस पर बन रहा है। एक और चीज इसमें होती है एलिप्स में, वो कहलाती है asymptotes. Asymptotes is a line which is just touching to the hyperbola and passing through the center. इसको just touch कर रही है ये लाइन और सेंटर में से पास हो रही है। इसी तरह यहां से उसमें भी इसी तरह बनेगा, क्यू बनेगी लाइन और एक क्यू बनेगी। So this is called the asymptotes. ये ग्राउंड से टच कर, ग्राउंड कौन सा है? ग्राउंड कहां से आ गया भाई? हाइपरबोला है, टच नहीं करे, जस्ट टचिंग। टच करने से थोड़ा सा दूर हो। The line which is passing through the center or the midpoint and is just touching the hyperbola on both the sides. ये भी और ये भी two asymptotes हो गए। So this line is called the asymptotes. और हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं, asymptotes की इक्वेशन निकाली फाइंड आउट की जाती है। उसमें कोई asymptotes नहीं था, इसमें एक नई चीज जो है asymptotes का भी इजाफा है। asymptotes is a line, asymptotes are the two straight lines which are just touching the hyperbola and passing through the center. तो हाइपरबोला एसिम्पटोट्स के अंदर अंदर रहता है, हाइपरबोला एसिम्पटोट्स के अंदर अंदर रहता है, इसको टच नहीं करता है और ना इससे बाहर जाता है, क्रॉस भी नहीं करता और इसको टच भी नहीं करता, इसके अंदर अंदर रहता है हाइपरबोला। ये इसके अंदर रहेगा, ये हमने एसिम्पटोट्स बना लिए तो हाइपरबोला इसके अंदर ही रहेगा। इस तरह अगर यहाँ लाइन ड्रॉ करें तो हाइपरबोला एसिम्पटोट्स के अंदर रहता है। Hyperbola will remain inside the asymptotes. It is never crossing the asymptotes, never touching the asymptotes. उसके अंदर रहता है। So this is another how to find the equation. हम सादा इक्वेशन बनाते हैं, इसके लिखते हैं या h और k जैसे इनमें क्या है, सेंटर 0 0 है, ओरिजिन है, तो h और k 0 0 होगा इन दोनों में, सेंटर इनका ओरिजिन है। तो अगर हमारे पास इस किस्म की इक्वेशन हो, ये इक्वेशन ले लेते हैं, h और k 0 0 होगा, so this will be y square upon a square minus x square upon b square equal to 1। ये इसकी इक्वेशन होगी। एसिम्पटोट्स की इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, 1 को 0 ले लेते हैं, 1 की जगह 0 लिख देते हैं, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट्स व्हाट विल वी डू, इन द स्टैंडर्ड इक्वेशन 1 विल बिकम 0, 1 को 0 ले ली जाती है, 1 0 हो जाएगा तो दैट विल बिकम फॉर इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स एम खराब। तो इसको हम 0 ले लेंगे, y स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 कर देंगे। हम इसको 1 की जगह 0 पुट कर देंगे। उसके बाद हम नेगेटिव वाले को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। इट विल बिकम वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को हम उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो इट विल बिकम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट कर दिया, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इट विल बिकम वाई। जब स्क्वायर रूट इस तरफ लेंगे तो इस तरफ प्लस माइनस लिखते हैं, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो जाएगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी हो जाएगा, और इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स। अच्छा सर, आप ये प्लीज बता देंगे ये जीरो क्यों आया? जीरो हम रखते हैं बेटा, फार्मूले क्या है जीरो। ओके सर, थैंक यू। इसको हम जीरो रख के हम करेंगे। सो वाई स्क्वायर विल बिकम वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विल बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को भी उस तरफ शिफ्ट कर दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर implies y is equal to plus minus a upon b x। प्लस माइनस a अपॉन, एक प्लस की होगी, जो इस तरफ टिल्ट कर रही है वो प्लस होगा, जो इस तरफ टिल्ट कर रही है वो माइनस वाली इक्वेशन होगी। तो देयर आर टू इक्वेशन, y is equal to a upon b x और एक होगी y is equal to माइनस a upon b x। एक उस तरफ जा रही है, वो पॉजिटिव वाली उस तरफ टिल्ट कर रही है, उसका झुकाव उस तरफ है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, जिसका झुकाव नेगेटिव एक्सिस की तरफ है वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जिसका झुकाव है। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स कहलाती है, इनकी इक्वेशन से। और ये भी, इसमें भी इसी तरह करेंगे। अगर ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0 कर देंगे, और इसमें भी वाई ही की वैल्यू निकालनी है बेटा, इसमें भी वाई ही की वैल्यू निकालनी है। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, वाई विल बी इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स हो जाएगा। बी अपॉन ए जो भी हो, आपने इसको इक्वल 0 करके y की वैल्यू निकालनी है। नेगेटिव को उस तरफ ले जाए और फिर y की वैल्यू निकालनी है हमने। ख्वाह ये इक्वेशन हो x पॉजिटिव हो, ख्वाह y पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो या x पॉजिटिव हो, दोनों सूरतों में हमने y की ही इक्वेशन वैल्यू निकालनी है। y शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन बी एक्स या b अपॉन ए एक्स, जो भी आता है हमने y की वैल्यू निकालनी है। दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। x इज इक्वल टू नहीं निकालना, ख्वाह कोई भी हो, ऊपर वाली इक्वेशन हो या नीचे वाले ये हो हमारे पास, या ये हो, दोनों में से कोई भी सूरत हो, हमने क्या करना है, y ही की वैल्यू निकालनी है। एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन में हमने y ही की वैल्यू निकालनी है। ये नहीं कि किसी ऊपर वाले में x निकाल दे और इस वाले में y निकाल दे, नहीं, एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन में हमने y इक्वल टू ही निकालना है, y इक्वल टू ही निकालना है। तो ये हमारे पास वो इक्वेशंस थी, मैंने आपको बता दिया। इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज थी हाइपरबोला की, वो मैंने आपको बता दी, शेयर कर। और आज जो है मैं आपको क्विज असाइनमेंट 1 जो है तकरीबन 7 बजे आप LMS पे चेक कर लीजिएगा। 7 बजे आपने LMS पे असाइनमेंट चेक कर लेनी है। 7 बजे तक मैं LMS पे असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर दूंगा, और यू विल फाइंड द असाइनमेंट एट 7। अच्छा सर, वो असाइनमेंट है, वो क्विज नहीं है? क्विज नेक्स्ट वीक होगा भाई, क्विज विल बी नेक्स्ट वीक, जज़ाकल्लाह। और दैट विल बी इन द क्लास, दैट विल बी ड्यूरिंग द क्लास। वो क्लास के बाहर नहीं होता क्विज, क्विज क्लास में होता है। तो क्विज जो है आपका क्लास में होगा, नेक्स्ट वीक होगा इंशाल्लाह। और इस वीक जो है मैं आपको यूनिवर्सिटी जाना असाइनमेंट दे पड़ेगा। रहा हूँ, इस वीक मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ,
और असाइनमेंट जो है वो आपने 2-3 दिन का उसका टाइम होगा, वो आपने उसमें 2-3 दिन के अंदर अंदर विद इन द टाइम आपने जमा करा देनी है इन द पीडीएफ फॉर्मेट। पीडीएफ